Very sorry, I've gone over time, I understand, but I'm going to be very quick with leprosy, and it's a very, very important topic. It's also called Hansen's disease. Deformities वगैरह develop होती हैं. It is also a mycobacteria. It affects skin and peripheral nerves. ठीक है? It is the infection of skin and peripheral nerves by Mycobacterium leprae. ठीक? Mycobacterium leprae जो है वो किस्सा से spread होता है, inhalation of droplets. ठीक है? और intact skin से contact पे भी होता है, but over a long period of time. Remember one thing, it is even slower growing than Mycobacterium tuberculosis. So one thing to remember is कि ये जो है वो one time contact वगैरह से नहीं होता. It has to be over a long period of time जो contact रहे. That is why we say कि caregivers of leprosy patients में हमारे पास there's a possibility. 95% जो है वो हमारे पास people who are exposed to Mycobacterium leprae will not develop the disease. So this is something that needs to be remembered. And niche जो है जो environmental जो हमारे पास ecological niche है वो armadillos हैं वाइल्ड में और कुछ और दूसरे एनिमल्स हैं, लेकिन ह्यूमन जब हम सिटी और कम्युनिटीज में वो करते हैं तो ह्यूमन में से ट्रांसमिशन होती है. इंक्यूबेशन पीरियड इसका जो है वो 2 years to 20 years है. सो इट कैन बी, you will never know कि exposure कब हुआ और क्या हुआ, because as we know कि multiple exposure over a long period of time. This is a very, very good website जो आप interactive website है, आप WHO की उस पे जाके देख सकते हैं. What I wanted to show was कि पाकिस्तान में जो है वो 225 cases per 100,000 की वो है, and that means कि जो है वो हम elimination उसमें आ गए हैं, because we are less than 1 million. 225 cases per million है, तो हम elimination phase में आ गए हैं, but we are not in eradication, which means less than 1 case per million होना चाहिए. ठीक है? Diagnosis जो है वो हमारे पास primarily clinical होता है, जिसके अंदर हम suspect करते हैं. Then you have to go, जिसके अंदर 3 main criteria हैं. Hypopigmented या loss of sensation in a pale hypopigmented या reddish skin patch. The other thing is thickened and enlarged peripheral nerve with loss of sensation and or weakness of the muscles supplied by nerve. It motor या sensory कोई भी हो सकता है. And the third thing is presence of acid-fast bacilli in a slit skin smear. ये 3 possible चीजें, इनमें से कोई भी एक हो तो हमारे पास diagnosis of leprosy है. The other thing is कि इसके अंदर हमारे पास 2 main descriptions हैं. There's possibacillary leprosy and there is multibacillary leprosy. Possibacillary is 1 to 5 skin lesions without demonstrated presence of bacilli in the slit skin smear. And इसके अंदर जो है वो मरीज की immunity higher level की होती है, and that is why they are able to contain the multiplication of lepromatous bacilli. On the other multibacillary में जो है वो proliferation ज़्यादा है Mycobacterium leprae की, so it is like ज़्यादा bacilli दिखाई देंगे. So leprosy with more than 5 skin lesions with or with nerve involvement or neuritis or number of skin lesions and neuritis, or with demonstrated presence of bacilli in a slit skin smear irrespective of number of skin lesions. Low level of immunity होती है. So this is what we talk about. It's a whole spectrum जिसमें हमारे पास tuberculoid pole है, जिसमें आपके पास granulomas ज़्यादा होते हैं लेकिन bacilli कम होते हैं, और lepromatous का जो दूसरे एंड है स्पेक्ट्रम पे, उसमें हमारे पास जो है वो histiocytes ज़्यादा हैं और bacilli ज़्यादा visualize होते हैं. The stain that we use, AFB Ziel-Nielsen भी किया जाता है, but much more important, the one that is frequently used is Wade-Fite stain, right? And आप spectrum देख सकते हैं कि ये this is TT, this is tuberculoid leprosy and this is lepromatous leprosy. तो इसके अंदर हमारे पास borderline lepromatous is this one, जिसके अंदर number of granulomas कम होते हैं और histiocytes ज़्यादा होते हैं, और borderline tuberculoid is when you have more granulomas and less histiocytes, and then you have borderline which you know
equivalent number of granulomas and histiocytes. So it's basically a spectrum of host immunity versus proliferation of bacilli. ठीक है. एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे एक भी बैसिलस नहीं है, यहाँ पर रेयर एक आध दिखाई दे रहे हैं, इधर भी एक आध दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से यहाँ पर फ्यू हो गए और यहाँ पर न्यूमरस हो गए हैं बैसिलाई. Right? Prevention and treatment. This is my last slide. Early diagnosis and complete treatment with multi-drug therapy. ये चीज याद रखनी है कि माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो हैं वो कभी भी सिंगल ड्रग थेरेपी से नहीं होते, मोनोथेरेपी नहीं होती, हमेशा मल्टी ड्रग थेरेपी होती है. दिस वाज द केस विद टीबी एज वेल एज द केस विद लेप्रोसी. इसी में भी हमारे पास जो है वो की स्ट्रैटेजीज हैं ये डिजीज बर्डन रिड्यूस करने के, और ये WHO के थ्रू और सेवरल हमारे यहाँ तो मैरी एडिलेड लेप्रोसी सेंटर है जो कि MALC जो सबसे ज्यादा हमारे पास लेप्रोसी की ट्रीटमेंट वाया WHO एडमिनिस्टर करता है. सो BCG वैक्सीनेशन भी हेल्पफुल होता है प्रिवेंशन ऑफ लेप्रोसी में. Standard adult treatment regimen for TB, no, for leprosy is rifampicin 600 mg. ये adult की हैं by the way. और clofazimine 300 mg once a month. ये सब once a month है. और clofazimine जो है वो 50 mg daily भी दी जाती है, दोनों ठीक. और dapsone जो है वो हमारे पास daily दी जाती है. एंड इसको जो है वो हमारे पास जो बिकॉज इट्स मल्टी बैसिलरी आपके पास जो है वो ड्यूरेशन इज लॉन्गर से अबाउट 12 months. सो हम इसकी जो है वो ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी इज लॉन्गर विद क्या नाम है 3 drugs. ऑन द अदर हैंड स्टैंडर्ड अडल्ट ट्रीटमेंट फॉर पॉसीबैसिलरी TB leprosy Possibacillary leprosy is rifampicin and dapsone. Rifampicin once a month and dapsone daily. और इसकी duration जो है वो हमारे पास 6 months है, right? And I think this is the key thing to remember. This was my last slide. If you have any questions. 2 questions. अच्छा, Dr. Javerian. जी जी. आप पहले आप पूछ लीजिए जी. rifampicin sensitive test वो समझ में नहीं. rifampicin sensitive नहीं, expert है, which is a PCR based method for detection of TB DNA. ठीक है. और इसके अंदर एक कंजर्व्ड पार्ट होता है RPOB जीन का, which is basically RNA polymerase जीन होती है. उसके 2 पार्ट्स हैं. एक कंजर्व पार्ट है जो हर माइकोबैक्टीरियम TB में स्पेसिफिक वही होता है, और एक इसका हाइपर वेरिएबल पार्ट है. जो हाइपर वेरिएबल पार्ट है वो रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस की सर्टेन चीजें मीडिएट कर सकता है. जो हाइपर वेरिएबल है उसके अंदर कुछ म्यूटेशंस जो हैं वो एसोसिएटेड होती हैं विद रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस. क्यों? क्योंकि रिफैम्पिसिन RNA पॉलीमरेज के पास जाकर बाइंड करती है. अगर साइट चेंज हो जाएगी, जीन चेंज हो जाएगी, तो उसका प्रोटीन चेंज हो जाएगा, टारगेट साइट चेंज हो जाएगी, एंड रिफैम्पिसिन विल नॉट बी एबल टू बाइंड. एंड दैट इज हाउ दिस एक्सपर्ट वर्क्स. आई एम श्योर आप लोगों ने नाम सुना होगा जीन एक्सपर्ट का, एंड दैट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड gene expert. Any other questions? Okay, wonderful. Thank you so much. Like, ma'am, there is a thing that even after starting the treatment, we have to keep the patient in isolation. Yeah. So what is exactly the time period? 2 weeks. Generally speaking, हम ये कहते हैं कि 2 हफ्ते के बाद जो है वो you know the TB bacilli die off, right? So what you see is कि remember one thing कि usually अगर patient respond कर रहा होता है to therapy, 2 weeks is a good time जिसमें आप जो है वो response measure कर सकते हैं. If you repeat smear and smear is negative, तो फिर जो है वो हमारे पास you can discontinue airborne precautions. However, but one thing to remember is कि airborne precautions सिर्फ अस्पताल के अंदर या facility के अंदर
रखने हैं, ठीक है. एंड इफ यू डोंट हैव नेगेटिव प्रेशर और वो सारी चीजें, तो यू कैन ऑल्सो कीप द पेशेंट इन अ हाईली वेल वेंटिलेटेड रूम जिसमें आपके पास क्रॉस वेंटिलेशन हो रही है. जैसे हमारे पास जो सैनिटोरिया वगैरह है, उनके अंदर कोई क्लोज्ड HVAC सिस्टम नहीं होता कि जो है वो आपके पास सक्शन और नेगेटिव प्रेशर हो, बट दे आर वेरी वेल वेंटिलेटेड एंड दे आर परफेक्टली सेफ टू कीप पेशेंट्स देयर. और घर में भी आप पेशेंट को यही कहते हैं कि आप वेल वेंटिलेटेड उसमें रखें. अगर वो नहीं कर सकते, आप नेगेटिव प्रेशर जनरेट कर लें. जो लेटेंट TB साइंस एंड सिम्टम्स नहीं होते ना, साइंस एंड सिम्टम्स, क्योंकि डिजीज नहीं है. There are no signs and symptoms in latent TB, and no need for preventing measures for extra pulmonary TB. No, intestinal TB में अगर pulmonary disease नहीं है और वो नहीं है, तो फिर smear negative है, बलगम नहीं प्रोड्यूस कर रहा मरीज, तो फिर जो है वो हमारे पास there is no need for aerosol precautions. BCG vaccine to prevent leprosy patient after disease? No. हम ये नहीं कह रहे कि after disease आप prevent कर रहे हैं. हम ये कह रहे हैं कि BCG vaccination से भी देखा गया है कि leprosy के भी मरीज कम हुए हैं, simply because the cells और immunity जो है वो हमारे पास sensitize हो जाती है against mycobacteria. Okay, and therefore the ability to form granulomas, the ability to combat infections, not just granulomas but to ability to combat mycobacterial infections increases अगर जो है वो BCG vaccination हुई भी हो. छोटे बच्चों में, बेबीज वगैरह में हम उसकी बात कर रहे हैं. और but पीड्स में तो सिंपल, बहुत आसान है, गैस्ट्रिक एस्पिरेट. पीड्स में यू डोंट नीड टू इंड्यूस स्पूटम. प्लीज, बच्चे नहीं खांसते, नहीं प्रोड्यूस करते स्पूटम, यू शुड गो फॉर गैस्ट्रिक एस्पिरेट. ठीक. गोल्ड स्टैंडर्ड फर्स्ट लाइन टेस्ट फॉर TB, गोल्ड स्टैंडर्ड तो कल्चर है. वो 1880 से वही चल रहा है. गोल्ड स्टैंडर्ड इज कल्चर. बट ऑफ कोर्स, is there for a need for treatment in latent TB in which bacteria? No, there is no need for treatment in latent TB unless के मरीज HIV का हो, या फिर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, या फिर स्टेरॉइड्स ले रहा हो और आप ये समझ रहे हैं कि इमिनेंट है कि मरीज जो है वो या इम्यूनोसप्रेसिव्स पे हो या ट्रांसप्लांट का मरीज हो. इन सिचुएशंस में आपको जो है वो लेटेंट TB सीक आउट करना है और ट्रीट करना है, बस. जी. मतलब हम लोग भी तो एक्सपोज हो चुके हैं ना, तो हम लेटेंट ही हुए ना. हाँ, ठीक है ना. तो जैसे ही वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में जाएगा पेशेंट, या डायबिटीज होगी या ट्रांसप्लांट होगी, तो वो एक्टिव हो जाएगा. नहीं, लेकिन हर आदमी में नहीं होता. सो यू हैव टू लुक एट दिस एंड डिसाइड कि जो है वो हर डायबिटिक पेशेंट में आपको जो है वो लेटेंट TB नहीं ट्रीट करना है. आपका मरीज जो है वो जो फॉर एग्जांपल उस डायबिटीज है, रिकरेंट इन्फेक्शंस दूसरी चीजों से हो रहे हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, इंप्रूव नहीं हो रहा है, और ऊपर से वी नो फॉर अ फैक्ट कि जो है वो उसका मोंटू पॉजिटिव है या आइग्रा पॉजिटिव है, तो फिर उसके अंदर हम लेटेंट TB ट्रीट करते हैं. अदरवाइज वी डू नॉट. शुक्रिया बहुत बहुत. थैंक यू वेरी मच. हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग मोस्ट डायग्नोस्टिक फॉर TB इज ग्रानुलोमा. Latent TB treatment will be same. No, latent TB की अगर आपको ट्रीटमेंट देनी है तो फिर रिफैम्पिसिन अलोन फॉर 3 months होती है, या फिर आइसोनाइजिड अलोन फॉर 3 months होती है. Fire vaccine or